धन्यवाद करते हैं कि आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे लिए यहाँ आए। ऑन बिहाफ ऑफ ग्लोबल पंजाबी एस गुरु गोबिंद सिंह जी पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ तो कि शब्द गान कर देव सेवा पर मोह है। मैं बेनती करती हूँ कि विद्यार्थियों ने कि उस जगह ते आ जान ते शब्द गायन शुरू करें। शब्द दे सत्कार वजों अपने सिर ढक के अपनी थावां ते खड़े
ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ प्रेजेंट ਕਰਨ ਤੇ ਬੈਜਸ ਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ जो कि अपना कीमती समय कट के साढ़े लिए आए, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं सीएम साहब। कि जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी थे जिन्होंने लेक्चर दिया था, वहीं पे हमारे माननीय स्वामी जी ने भी लेक्चर दिया, तो जोरदार तालियों से उनका ये सम्मान किया जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी जी कि आप इतनी दूर से तालियां चल रही हैं जी। महारानी साहिबा, मुझे लगता है कि आप अपने आप में ही एक इतिहास हो, और मैं चाहती हूँ कि जो भी ये कार्यक्रम देख रहा है वो इस इतिहास के बारे में जाने और इसको ही अपने आप में ढालें। ताड़ियाँ चलती रही जी, मैंने लगता है ताड़ियाँ नहीं होंगे, हाथी चलाने आपका जोरदार ताड़ियाँ नाल। तकरीबन डी सीएम हरियाणा कि सारे मेरे भैन भराओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो मैं दसना चाहना कि वाई वी नीड GPA ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन की लोड़ पई 1960 हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੋਂਦ ਚਿਲਡਰਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਡ ਚੌਕ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਖੁਦ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ 17.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਕਰੀਮ ਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ GPA ਦੇ 11 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ 42 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੀ, ਯੈਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਸਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਮੈਡੀਸਨ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 12,783 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਟੋਟਲ 11,000 ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਊਗਾ, ਯੈਸ, ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੋ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਸੀ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਅਸੀਂ GPA ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਸ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ। मैं बेनती करती हाँ ढिल्लो साहब नूं कि वो साइटेशन नूं पढ़न।
celebrate not just an award ceremony, but a timeless ideal, the ideal of Sher Punjab Maharaja Ranjit Singh, the Lion of Punjab, who ruled not by fear, but by the love, justice and humility. A few years ago, in BBC survey of the greatest leaders of the world history, names of the Abraham Lincoln, Emperor Akbar were included. Yet the world voted Maharaja Ranjit Singh as the ruler one in the world. Maharaja Ranjit Singh's Darbar was a living example of unity, working together for the progress of Punjab. He built the temples and mosques and gurdwaras. He gave India the model of inclusive governance that remained unmatched even today. The Global Punjab Association is proud to carry out this legacy. Confers Sher Punjab Maharaja Ranjit Singh Award on Shri Naib Singh Saini Ji, the Honorable Chief Minister of Haryana. In the gracious presence of this august gathering, Sher Punjab Maharaja Ranjit Singh Award is conferred in the sacred remembrance of the sovereign who epitomized bravery, justice and ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ प्राप्त करन। मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ प्रिंट मीडिया का, हरियाणा से जो भी हमारे भाई बहन यहाँ पे पहुंचे हैं कि वो अपना कीमती समय लगाकर आज हमारे बीच प्रस्तुत हुए। On behalf of Global Punjabi Association, myself Dr. Manpreet Kaur Dhaliwal would like to wholeheartedly thank you everyone for being present on the release of the book. ताड़ियां ना रुकन जी, जोरदार ताड़ियां। ऊपर जो मेरे सज्जन मित्र बैठे हैं उनसे विनती है कि वो भी ताड़ियों की गूंज नीचे तक आए। सिंह सैनी जी का कि उस स्टेज पर आने दो शब्द के हैं। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं सर। ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। आज ये मेरे लिए बहुत ही अत्यंत प्रेरणादायी और हृदय स्पर्शी आज का दिन है, क्योंकि आज हमारे आदरणीय डॉक्टर इकबाल सिंह जी लालपुरा साहिब ने टिल्ला जंजू का राका इस किताब का विमोचन किया है, किताब लिखी है। मैं उन्होंने बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस अवसर पे गुरु गोस्वामी सुशील जी महाराज मंच पर विराजमान ने, भारतीय जनता पार्टी दे पंजाब दे कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी मौजूद ने, हमारे नाभा दी महारानी श्रीमती उमा सिंह जी मंच पे विराजमान ने, कुलवंत सिंह जी
धालीवाल साहब, डॉक्टर KS औलख जी, सरदार जगदीश सिंह जी झिंडा, प्रधान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और हमारे पंज प्यारे परिवार दे भाई नौनिहाल सिंह जी, भाई गुरप्रीत सिंह जी, उपस्थित सभी प्रतिष्ठित सभी हमारे गणमान्य सभी महानुभाव, माताओं बहनों, युवा साथियों, आज जैसा मैंने कहा भी है कि मेरे लिए ये आज का दिन बड़ा प्रेरणादायी और हृदय स्पर्शी दिल है। हम सब जानते हैं कि आज यहाँ हिंद की चादर, नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित पुस्तक का जो विमोचन हुआ है, हम सब उसके साक्षी बने हैं। मैं सबसे पहले गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और मैं सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा इनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ कि टिल्ला जंजू का राका जैसी महान कृति रचने के लिए मैं हृदय से इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे खुशी है कि सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा ने जो ये पुस्तक श्री तेग बहादुर जी के बलिदान की ये अमर गाथा का एक ऐसा प्रेरक प्रयास है जो गुरु परंपरा की उस ज्योति को ये आगे बढ़ाता है। मुझे खुशी है कि टिल्ला जंजू साहिब वह स्थल है जहाँ गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन के कई अमूल्य क्षण वहाँ बिताए हैं। हम सब इसको जानते हैं। संकल्प का ये प्रत्यक्ष साक्षी है। मुझे खुशी है आप सबके बीच में मित्रों, संत साहित्य और भारत के इतिहास में श्री गुरु तेग बहादुर जी एक नया नाम, एक ऐसा नाम है गुरु तेग बहादुर जी का। ये भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिन्होंने मानवता की रक्षा और धर्म की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं। हम सब जानते हैं, हम सबको उस इतिहास के बारे में मालूम है। मध्य युग के कवि सेनापति ने अपने काव्य में गुरु तेग बहादुर जी के विराट व्यक्तित्व और सृष्टि के संरक्षक के रूप में उसको स्मरण किया है। हम जानते हैं कि उन्होंने कहा है, अपने शब्दों में कहा है कि प्रकट भयो गुरु तेग बहादुर, प्रकट भयो गुरु तेग बहादुर, सकल सृष्टि पे ढापी चादर। ये हमारे जो कवि सेनापति हैं, उन्होंने अपने मुखारबिंद से ये शब्द कहे हैं। मित्रों, गुरु तेग बहादुर जी 1664 ईस्वी में 8वें गुरु श्री हरकिशन सिंह जी के ज्योति ज्योत समा जाने के बाद वो गुरु गद्दी के ऊपर विराजमान हुए। हम सब जानते हैं, जब वो गद्दी पर विराजमान हुए उस समय
मुगलों का औरंगजेब गद्दी पर विराजमान थे और हालात इतने नाजुक थे कि गुरु गद्दी पर बैठना शहंशाह से शत्रुता मोल लेना था, क्योंकि इस प्रकार का टेरर, इस प्रकार का वातावरण उस समय में था। ऐसे संकट के समय में गुरु तेग बहादुर जी ने निर्भीकता से का परिचय देते हुए गुरु पद की सेवा करना उन्होंने स्वीकार किया और उस गद्दी पर वो विराजमान हुए हैं। औरंगजेब, मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि औरंगजेब अपने जोर जुल्म के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर तुला था। वो उस समय का जो वातावरण था वो इतिहास है, इस बात को हम सब जानते भी हैं। उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को भी उस समय में ध्वस्त करने का काम किया है और ध्वस्त ही नहीं किया, आदेश जारी किए कि नए मंदिरों पर भी निर्माण बंद किया जाए। इस प्रकार का वो वहाँ पर पाबंदी लगी। और हम सब ये भी जानते हैं कि उस समय में कश्मीरी जो हमारे पंडित थे उनके ऊपर कितना अन्याय हो रहा था, उसको भी हम जानते हैं। इतना अन्याय हो रहा था कि उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, वो जब इतना अन्याय उन कश्मीरी पंडितों के ऊपर हो रहा था तो अपनी धर्म की रक्षा के लिए वो कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी की शरण में वो आए और कश्मीरी पंडितों ने पंडित कृपाराम के नेतृत्व में आनंदपुर साहब में गुरु तेग बहादुर जी के पास वो पहुंचे। वो इतिहास हम सब जानते हैं जो आज इस जो बुक के अंदर जो विमोचन हुआ है, हमें गुरु तेग बहादुर जी के उस इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हमारे जो कश्मीरी पंडित थे, जैसा मैंने बताया भी है कि पंडित वो पहुँचे, उनकी व्यथा को सुनकर के गुरुजी ने कहा कि यदि कोई महापुरुष, गुरुजी ने कहा कि यदि कोई महापुरुष अपना बलिदान दे तभी ये धर्म बच सकता है, ये गुरु तेग बहादुर जी ने कहा। और यह सुनकर के, क्योंकि उनके साथ ही मात्र 9 वर्ष की आयु गुरु गोविंद सिंह जी, वो बालक गुरु गोविंद राय, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है, आप अपना ही बलिदान क्यों नहीं दे देते। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने, ये गुरु तेग बहादुर जी को, एक 9 वर्ष का बालक जब उनकी व्यथा को, वो अपनी व्यथा गुरु तेग बहादुर जी के सामने रख रहे थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, ये शब्द कहे। मित्रों, गुरु तेग बहादुर जी ने अपने पुत्र की बात को सुना और सुन करके उन्होंने पंडितों से कहा कि जाओ औरंगजेब को जा करके बोल दो, कह दो कि यदि गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर ले तो हम सब ही इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। ये गुरु तेग बहादुर जी ने उनको कहा कि आप जा करके बोल दीजिए, उनको कह दीजिए औरंगजेब को। और इसके साथ ही गुरुजी औरंगजेब से मिलने वो दिल्ली रवाना हो गए। अनेक कष्ट सहने के बावजूद मित्रों, हम सब जानते हैं कि गुरुजी ने अपने धर्म से वो कभी विमुख नहीं हुए। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने 11 नवंबर 1675 को उन्होंने अपना शीश कुर्बान कर दिया। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने शीश दिया, पर सिर न दिया। शीश दे दिया, धर्म नहीं छोड़ा। गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास ये हम सब के सामने है।
जब औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक से गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम करवा दिया, तो भाई जैता ने उनके शीश को आनंदपुर साहिब ले जाने का संकल्प उन्होंने किया कि ये औरंगजेब मुगलों के हाथ में ये गुरु जी का पवित्र ये शरीर हाथ में लगे। मित्रों, उस जब मुगल सेना भाई जैता का पीछा कर रहे थे, उन्हें जिला सोनीपत के बड़ खालसा गांव, जब वो वहां से निकले, बड़ खालसा गांव में खुशहाल नाम के एक गुरु के शिष्य मिला। उसने भाई जैता को कहा कि मेरी शक्ल गुरु जी के तरह दिखती है, इसलिए मैं अपना शीश उतार करके मुगल सेना को मैं सौंप देता हूँ। भाइयों, इस हम सब जानते हैं कि खुशहाल अपना शीश कलम करवा दिया और भाई जैता गुरु जी का शीश लेकर के आनंदपुर साहब चले गए। मुझे हम सब जानते भी हैं कि जब हम दिल्ली से निकलते हैं, दिल्ली से निकलते ही उस गांव का नाम बड़ खालसा, आज भी वो बड़ खालसा के नाम से वो पवित्र गांव आज भी वहीं पर है। गुरु जी के इस ने के बलिदान पर ये कहा भी है, जो उन्होंने बलिदान दिया है, उन्होंने कहा कि तिलक जंजू राखा पर ताका, किन्नो बड़ो कलु मही साका, साधनी हेती इति जिन्नी करी शीश दिया पर सी न उचरी। ये गुरु गोविंद सिंह के पिताजी के बलिदान जब उन्होंने दिया, तो इस प्रकार के वाक्य, ये दिल को झंझोरने वाले एक प्रेरणादायी वाक्य वो हमें मिलते हैं। और इसका अर्थ भी है कि तिलक और जनेऊ की प्रभुता की रक्षा के लिए कलयुग में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अतुलनीय बलिदान दिया है। मित्रों, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दे दिया, लेकिन उन्होंने हा तक नहीं की, उन्होंने आ तक नहीं की। उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें हिंद की चादर, धर्म की चादर जैसे सम्मानजनक संबोधनों से आज भी गुरु तेग बहादुर जी को याद किया जाता है। मित्रों, प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी से लेकर के दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी सिख गुरुओं ने हमें सेवा, समानता और साहस की शिक्षा हमें दी है। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। सर्वंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने चारों साहिबजादों को राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया। भाइयों, इतिहास है हमारा, हम सब जानते हैं, जिसने हर दौर में भारत को बचाने के लिए, जिन्होंने हर दौर में भारत को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। मित्रों, हरियाणा की पावन धरा से सभी सिख गुरुओं का गहरा संबंध रहा है, क्योंकि ये ज्वाइंट पंजाब था। हरियाणा ये पूरा का पूरा पंजाब था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अपने अस्तित्व में आया। हरियाणा की पावन धरा से सभी सिख गुरुओं का गहरा संबंध रहा है। जहाँ जहाँ वो पधारे हैं, मुझे खुशी है, हरियाणा के जिस पवित्र भूमि के ऊपर गुरुओं के चरण कमल पड़े हैं, ऐसे 30 से अधिक स्थानों पर उनकी याद में गुरु घर स्थापित हैं। मुझे खुशी है मित्रों, सिख गुरुओं और सिख समाज के प्रति हमारी सरकार का प्रेम
केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में दिखाई देता है। हम सब जानते हैं मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सिख समाज के योगदान के प्रति बार बार अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। उनकी पहल पर आज़ादी का अमृत महोत्सव में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष को देश भर में भव्य तरीके से मनाया गया है। हम सब जानते हैं जिस स्थान के ऊपर बैठ करके उस आक्रांता ने वो फरमान जारी किया था कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया जाए, उसी स्थान के ऊपर पहली बार देश में जिस स्थान से आदेश पारित हुआ था उसी स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी का 400वां साला वर्ष प्रकाश पर्व उनका भव्य तरीके से वहां मनाया गया है। भाइयों, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर उनकी स्मृति में एक डाक टिकट और एक सिक्का भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जारी किया है। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह, फतेह सिंह के शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों को हमने आगे बढ़ाया है। हरियाणा में भी हमने उसको लगातार निरंतर हम आगे बढ़ाते रहे हैं। चाहे गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो, करतारपुर कॉरिडोर हो, और या हर कदम पर हमारी जो डबल इंजन की सरकार है ने श्रद्धा और सम्मान के साथ काम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि दिसंबर 2022 में हमने हरियाणा में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की हमने स्थापना की, और मित्रों, इससे सिखों की काफ़ी समय से चली आ रही मांग को भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। इससे हरियाणा में सिख समुदाय को स्वायत्ता भी मिली है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि जब मैंने दूसरे टर्म की जब मैं शपथ ले रहा था, और शपथ लेने के तुरंत बाद जब मैं सचिवालय में गया, मैंने चार्ज लिया, तो मेरे पास एक विषय मेरे ध्यान में था। मैं जब भी जाता था कि जिस पवित्र स्थल के ऊपर गुरु नानक देव जी लगभग 44 दिन रह करके समाज को जिन्होंने एक दिशा देने का काम किया, और जो सिरसा के अंदर वो पवित्र स्थल चिल्ला साहिब के नाम से वो आज जाना जाता है, उस पवित्र स्थल की जो भूमि थी वो आज भी उस पवित्र गुरुद्वारा के नाम नहीं थी। और जब मेरे पास वो फाइल आई और मैंने देखा कि ये पवित्र गुरुद्वारा साहब के नाम ये जमीन नहीं है, वो 70 कनाल भूमि, हमने तुरंत हमारी कैबिनेट ने फैसला किया कि ये पूरी की पूरी भूमि बिना किसी भी पैसे के वो पवित्र गुरुद्वारा के नाम कर दी जाए, और वो भूमि हमने चिल्ला साहिब गुरुद्वारा के नाम वो कर दी। 70 कनाल भूमि। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि गुरुओं की इस परंपरा को निरंतर हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। उनके जो शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने अभी पिछले दिनों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ऐड निकाली थी, और लगभग हमने हरियाणा के अंदर स्कूलों में पंजाबी टीचर्स की नियुक्ति के लिए हमने पंजाबी टीचरों की नियुक्ति की है।
मित्रों, मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने यमुनानगर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो कॉलेज का नाम, जो मेडिकल कॉलेज बना है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से हमने उसका नामकरण किया है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमने असंध के अंदर भी जो राजकीय महाविद्यालय है, जो राजकीय महाविद्यालय गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम पर उसका नामकरण हमने किया है। मित्रों, मुझे खुशी है बताते हुए कि लखनऊ साहिब, जहां माता गुजरी जी, जिनका ननिहाल गुरु गोविंद सिंह जी का ननिहाल है, वहां पर हमने VLTA कॉलेज की स्थापना माता गुजरी के नाम से वो की है, उसका नामकरण हमने उसके नाम से रखा है। मित्रों, मुझे खुशी है बताते हुए आप सबके बीच में कि हमने हजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब, श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के हमारे तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता हरियाणा सरकार उपलब्ध कराती है। हमने इसके निमित्त एक योजना बना करके कि स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना, इसके माध्यम से हम उनका पूरा खर्चा इन पवित्र स्थलों के ऊपर जाने के लिए हरियाणा सरकार देती है। हमने इस योजना को शुरू किया है। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि आज जब हम विज्ञान, तकनीक और सोशल मीडिया, AI के युग में आज हम जी रहे हैं, तब श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे महापुरुषों के उपदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। मित्रों, उनका संदेश है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब हम उनमें विनम्रता हो। ये गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब उसमें विनम्रता हो, शक्ति तभी है जब उसमें पवित्रता हो, जब उसमें करुणा हो, और स्वतंत्रता तभी स्थायी है जब उसमें दूसरों के लिए सम्मान हो। ये गुरु तेग बहादुर जी के ये प्रवचन है, उन्होंने कहा है। मित्रों, मुझे खुशी है कि आज इस पुस्तक का विमोचन वो हमारे लालपुरा साहब जी ने आज किया, उन्होंने लिखी है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमारे इकबाल सिंह जी लालपुरा बुक्स लिखते रहते हैं, परंतु उन्होंने जो ये बुक्स लिखी है, ये वो इतिहास है जिस इतिहास को आने वाली पीढ़ियां इस पुस्तक में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के उन महान आदर्शों व सिद्धांतों की याद दिलाती रहेगी, और उनके दिखाए हुए मार्ग पर हमें निरंतर चलने की प्रेरणा इस बुक के माध्यम से हमें मिलती रहेगी। मैं इसके लिए सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा को बहुत बहुत हृदय से मैं साधुवाद देता हूँ। मुझे खुशी है कि आज इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस विमोचन के अवसर पर मैं पुनः डॉक्टर इकबाल सिंह जी लालपुरा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका इस अवसर के ऊपर इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका भी दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम तहे दिल से धन्यवाद कर उनमें बेनती करांगी सैनी जी और स्टेज पे बैठे पदवंते सज्जन दोस्तों, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 2,54,317 ਰੁਪਏ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ 3,94,333 ਰੁਪਏ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰੀ ਮਾਰਨ, ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਭਗਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਝੂਠ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਚਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਜੱਜ ਕੇ ਜੀਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਡੈਕਟਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, 15 ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਲੋਕ। तो इस करके जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਈਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ, ਚਮਕਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦ ਚਿਹਰਾ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਰੱਖੋ ਯਾਰ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਵਾਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ साहब, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जी नेशनल कन्वीनर भारतीय सर्वधर्म संसद के वो 2 शब्द कहे। हमारे पास थोड़ी सी समय की कमी है तो का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपस्थित महानुभाव, हरियाणा प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री जी, आज आप इस ऐतिहासिक समारोह में आए हैं। पुस्तक का विमोचन है। पुस्तक का विमोचन तो दिल्ली में हो गया था, बात सीमित रह गई है, उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य कैसे हो। लालपुरा जी ने आज उसको पूरा किया। समारोह था और हम 3-4 हमने उस वक्त भी आपको आशीर्वाद दिया था कि आपको यहाँ से हरियाणा में इसलिए बनाया गया है कि आप कीर्तिमान स्थापित करेंगे, आप लकीर को नहीं पीटेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आपको नहीं बनाया। लालपुरा जी मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन संतों में बड़े संत भी थे, कैलाशानंद महाराज जी भी थे, मैं था, हमारे जैन मुनि थे, विवेक जी महाराज थे, तो वहीं गैदरिंग होती है, सब मिलते हैं, ऐसा समागम होता है, शपथ ग्रहण समारोह इतिहास का एक साक्षी होता है। मैंने एक सुझाव दिया है, इस किताब में जो लिखा है आपने, वो पंजाब हरियाणा से प्रारंभ करके पूरी दुनिया में कैसे जा सकता है, क्योंकि पंजाबी एसोसिएशन और पंजाबियत पूरे विश्व में स्थापित है। वो हमारी संस्कृति जो है, वो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारी अनेकता जो है उसमें एकता कैसे बनी रह सकती है। ये किताब लिखने का माध्यम और आज प्रोग्राम करने का तभी इसका फैसला होगा कि जब हम प्रैक्टिकल इसको अपने आम लोगों तक ले जाएंगे। भारत की सर्वधर्म संसद आपके साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है और कल भी खड़ी रहेगी, और पंजाबियत को बचाते हुए, क्योंकि हरियाणा भी तो पंजाब था, हमारे सामने हरियाणा बना। पंजाब कहा करते थे, हिमाचल भी कभी पंजाब था, और जो पाकिस्तान में रह गया वो भी पंजाब था। इतना बड़ा आज़ाद हिंदुस्तान जब हुआ, उस वक्त तक पंजाबियों का एक अपना एक छत्र राज्य था। कहीं ना कहीं हम दुबले हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, अपने कर्मों से, अपने कामों से हमारी पंजाबियत छुट रही है, हमारी संस्कृति छुट रही है, और ग्लोबल जो संस्था है आपकी, वो जो काम कर रही है, हम उसके साथ काम करेंगे। मैंने योजना बनाई है, मगर अभी नहीं बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी की कृपा है, मान लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें मान लेते हैं। लालपुरा जी के बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि इनको इनकरेज कैसे किया जा सकता है। भाई पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं, इस पार्टी के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, संघ का 100वां वर्ष। धन्यवाद। ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ
ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ GPA ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਸਥਿਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਪੰਨ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰਹਿਨੁਮਾ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਾਭਾ ਭੈਣ ਜੀ ਉਮਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਾਭਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ MLA ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ BJP ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਸ਼ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। श्री गुरु गोस्वामी जी महाराज, हाँ जी, श्री सुदेश कुमार